آج میرا ایمان ہے کہ آج ہم برکت لے کر جائیں گے، اپنی برکت لے کر جائیں گے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ برکت آپ کی آج کے کلام کی برکت آپ کے ساتھ ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ آج کل کرسمس کا سیزن ہے، تو آپ نے دیکھا کہ چرچ میں تھوڑی ڈیکوریشن ہوئی ہے اور کرسمس ٹری بھی لگی ہے۔ تو میرے چھوٹے بھائی ہیں عامر اور ان کی فیملی، یہ سب وہ لے کر آئے اور رات کو ہی لائے اور رات کو ہی انہوں نے سب یہ ہے نا لگا دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی بیدار فیملی کے لیے ذرا کرسمس ٹری ہم کیوں لگاتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کرسمس ٹری ہم کیوں لگاتے ہیں؟ کرسمس ٹری ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ ایک درخت کو شو کرتی ہے۔ یہ ایک درخت ہے، یعنی ٹری، اور درخت کے ساتھ سب کو پتا کیا لگتا ہے؟ درخت کو پھل لگتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یہ جو ہم کرسمس ٹری لگاتے ہیں، ہم کوئی اس کی ورشپ نہیں کرتے، ہم اس کی کوئی پرستش نہیں کرتے، اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خدا کی برکت کو شو کرنے کے لیے لگاتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح درخت کے ساتھ پھل لگے ہوتے ہیں، اسی طرح خدا بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ درخت کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خدا کی برکت کو شو کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم نے سیکھ لیا کہ یہ ٹری جو ہے یہ ہم اسی لیے لگاتے ہیں کہ یہ خدا کی برکتوں کو شو کرتا ہے۔ ہم اس کا اور کوئی ایسے میننگ نہیں ہے کہ کوئی ہم اگر اس کو گھر میں یا چرچ میں اس کو لگاتے ہیں تو اس کا کوئی ہم ورشپ کرتے ہیں، نہیں، یہ ہم خدا کی برکت کو شو کرتے ہیں۔ ہم اپنے کلام کی طرف آج بڑھتے ہیں۔ آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے خدا کے ایک ایسے ہستی کو سیکھیں گے، اس کے بارے میں جو خداوند یسوع مسیح کے سامنے جب وہ آتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کو کس طرح لے کر چلتے ہیں۔ یعنی کہ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ مارچ آف دا فیتھ۔ کیا سیکھنے جا رہے ہیں جی؟ مارچ آف دا فیتھ، یعنی کہ ایمان کی چال چلنا۔ کیا سیکھنے جا رہے ہیں جی؟ ایمان کی چال چلنا۔ ایمان کی چال چلنا۔ بائبل مقدس بڑی بڑی ہے جو خدا کے ساتھ ایمان کی چال چلے ہیں۔ مارچ آف دا فیتھ سے ہماری پوری بائبل بھری ہوئی۔ لیکن میں آج ایک ہستی پر غور کرنے جا رہا ہوں، انجیل مقدس کہ یہ ہستی ہے اور ہر چرچ میں ذکر ہوتا ہے، ہر میسج میں بھی ذکر ہوتا ہے، اور وہ ذکر ہے جو خدا کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک بائبل مقدس انجیل مقدس کا سورما بھی میں اسے کہہ سکتا ہوں۔ میں اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ انجیل مقدس کا ایک سورما ہے، اور وہ سورمے کا جو نام ہے وہ ہے زکئی۔ ہاللیلویا۔ آپ نے یہ کلام نہیں سنا ہوگا کہ یہ بھی کوئی سورما ہے، لیکن میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ زکئی جیسا سورما نہیں ہے کہیں بھی۔
आइए हम इंजील मुकद्दस में से देख लेते हैं। मुकद्दस लूका रसूल के इंजील उसका 19 बाब 1 से 9 आयात हम पढ़ेंगे। हम ब्रदर शौकत के साथ मिलकर इस हवाले को पढ़ेंगे। जरा आवाजें बुलंद करके शौकत भाई पढ़िए। लूका रसूल के इंजील उसका 19 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था। वो यरू में दाखिल होने के लिए जा रहा था। और देखो जकई नाम एक आदमी था। और देखो जकई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना लेकिन सकता था। भीड़ की सबब से देख ना सका, इसलिए कि उसका कद छोटा था। इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक कुलर के पेड़ पर चढ़ गया। बस उसको देखने के लिए आगे गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसे उस राह को जाने को था। उस राह को जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, जब यीशु वहां पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐसे कई जल्द उतर आ, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना क्योंकि जरूरी मुझे है। आज तेरे ही घर रहना है। वो जल्द उतर कर उसको से अपने घर ले गया। वो जल्द उतर कर उसे अपने घर ले गया। कर कहने लगे, जब लोगों ने देखा तो सब बुलाकर कहने लगे वो एक गुनहगार शख्स के हाथ जा उतरा। कि वो एक गुनहगार शख्स के हाथ जा उतरा। जकई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, जकई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावन देख, अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, देख मैं आधा माल अपना गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया तो उससे चुगना अदा करता हूँ। और अगर किसी का नाहक ले लिया तो उसको चुगना अदा करता यीशु हूँ। ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है। यीशु ने कहा, आज इस घर में नजात आई है। खास बरकत हो। शुक्र हो। हमने पढ़ा मुकद्दस लूका रसूल के इंजील उसका 19 बाब और उसकी 1 से 9 आयत हमने पढ़ी है। कितनी खूबसूरत आयत हमने पढ़ी है। और जकई, मेरे अजीजों, जकई इसका कद छोटा है। खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं। इसको पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ आए हैं और वो इस रास्ते से गुजर रहे हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह को देखने का मुश्ताक था। खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत बेताब था कि मैं कब खुदावंद यीशु मसीह को देखूंगा, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। उसको मौका नहीं मिल रहा था। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह उसके इलाके की तरफ आए हैं, और जब वो आए हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के पास बहुत सारी भीड़ है और ये देख नहीं पाता। उस भीड़ के सबब से देख नहीं पाता, क्योंकि इसका एक तो कद भी छोटा है और भीड़ बहुत है, और इसलिए ये देख नहीं पाता। मेरे अजीजों, सबसे पहले जो इसकी खास बात ये है कि इसने अपने दिल में ठान लिया कि मैं यीशु को देखूंगा। सबसे बड़ा ईमान इसका, इसने घर में बैठे ही ईमान रख लिया कि मैंने यीशु को देखना ही देखना है, मैंने उसको हर सूरत देखना है।
जबकि ये कौन है? ये तो वसूल लेने वालों का सरदार है, यानी कि दौलतमंद है, बहुत दौलत है इसके पास। वसूल जो लेते हैं वो करोड़ों रुपए उस वक्त भी कमाते होंगे, और ये तो उनका भी सरदार है, यानी कि बहुत अमीर है। आज मेरे अजीजों बताइए, हमारे पास पैसा आ जाए तो हम तो इंसान को इंसान नहीं समझते, लेकिन ज़कई के पास पैसा है, दौलत है, सरदार है, इज्जत, दौलत, शोहरत, हर चीज है, लेकिन वो मेरे यीशु को देखने के लिए बेताब है। हालेलुया। वो यीशु को देखने के लिए बेताब है। वो ईमान ले आया है यीशु पे, घर बैठे ही ईमान ले आया कि मैं यीशु को देख लूंगा तो मैं निजात को हासिल कर लूंगा। और जब खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं और इसका कद छोटा है, भीड़ है, भीड़ की वजह से ये खुदावंद यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाता, और ये भाग कर आगे जाता है, और आगे एक गोलर का दरख्त होता है। गोलर का दरख्त, उसके ऊपर चढ़ जाता है। गोलर के दरख्त का जो एक मैं मीनिंग से निकालता हूँ, या मैंने इसको देखा कि गोलर का दरख्त कैसा होता है, या क्या इसकी खसूसियात क्या है गोलर के दरख्त की, तो वो मुझे ये पता चली है कि ये एक ऐसा दरख्त होता है जिसके साथ फूल नहीं इसके निकलते, इसके फूल नहीं निकलते, इसको डायरेक्ट फल लगता है, इसको डायरेक्ट फल लगता है मेरे अजीजों। तो इसके अंदर ये एक खसूसियत है कि इसको डायरेक्ट फल लगता है मेरे अजीजों। गोलर का दरख्त जो है, इसके जो मीनिंग है वो नायाब के हैं, मतलब कि ये मुख्तलिफ किस्म का एक दरख्त है, एक बहुत ही खास किस्म का दरख्त है। इसको